Hello members, this is Amman from Upmost Talks. We hope that you are doing well. So as expected, as we had conveyed to you in the last video, yesterday's video, that there is a probability that Nifty 50 might gap up today. So it did gap up today. It opened at 17249.40 and maintained a consistent upside today, though it fell down in the later half of the day around we believe 17,170. It tried to like break its low of today of 17,167, but it could not do so. So yes, now there is a gap. Now there is a gap between yesterday's candle and today's candle. So if Nifty 50 opens tomorrow and enters this flag, so and continues to stay within it, we can say that Nifty 50 might have reversed its trend from bearish to bullish in the short term. However, there is a probability that it might open up as a gap and then try to come down. However, if it opens as a gap and tries to come down, then it is likely to find support at this line. So there is a probability that Nifty 50 might open at the same level or might gap up and then try to come back. However, if it holds this line, so there is a probability that it can continue its uptrend in the near future. Obviously, there will be some profit booking to come, but can a crash come? No, as of now, it doesn't look that a crash or correction is likely to come. Yes, minor profit booking will come, then it will try to hold its support and resistance in the days to come. But as we had said, yes, the Nifty 50 did gap up today. It maintained a strong position throughout the day. Bulls were able to dominate the market. But as of now, yes, it is at its major resistance line, and we have been constantly saying that it is likely to find resistance at this line, and it exactly touched this line and came back. So it is the highest that is 17,249. You can check our yesterday's video and understand how we had derived this flag and how we had mentioned like it is going to touch this level and there is a probability that it might try to come down, because entering this flag means that there could be a potential reversal in Nifty 50's trend from bearish to bullish. As of now, we cannot say that Nifty 50 has reversed its trend from bearish to bullish because nothing major has happened. Yes, Nifty 50 has moved up from a very low of 16,410 to almost 17,249. So it is a recovery of 800 points, but the fall was even greater. So we need to understand that to reverse the trend completely, Nifty 50 has to remain strong and should enter this flag within a day or two to maintain its upside. So again, this is going to act as resistance tomorrow. If it gaps up, then something like this can happen. It gaps up, it goes inside this area, okay, to trap, and then it comes back again and then try to fill this gap, the gap that has been created today. So I will just show you the gap. Just a second. This is the gap. So there is a probability that Nifty 50 might open up tomorrow. What will happen? People will start buying calls because they will assume, because a lot of people might be using this flag as the basis for buying calls and puts. So what will happen? People will try to buy call assuming that Nifty 50 has entered the flag and the probability of Nifty 50 going up is higher. So to make a trap, big players might try to open it as a gap up, then they might try to bring it. However, if this line is broken again and Nifty 50 continues to stay below this line, there's a probability that it might try to fill this gap tomorrow itself. Does it mean that Nifty 50 has again reversed its trend from bullish to bearish? No, it can be merely profit booking, and as far as we are concerned, the operators might not want as of now to enter this flag pattern because the information is not very good as of now, because corona is also still growing and we are also finding cases in Delhi and other states of India. So operators might not wish as of now to convert the entire trend from bearish to bullish, but yes, profit booking is likely to come, we know that. So we might see some profit booking in information technology shares. Today we saw that Reliance had started moving at the end of the trading hours. So there is a probability that they might try to move up Reliance and some other sectors while bringing IT, information technology stocks down, because IT stocks are like making new highs almost every other day. This is only an assumption. We can be certainly wrong.
that we will come to know tomorrow only. But because Reliance has moved in the later trade in the latter half of the trading hour, so we can say that there is a probability that they might try to keep up Reliance tomorrow, that they might try to push Reliance up tomorrow and try to bring IT stocks down in order to manage the index. So again, please note that these videos are only for your educational purposes. There is no intent from us to encourage you to buy call or puts. This information is only for your educational purposes. You can use this analysis and our past videos to understand how we had arrived at these values, how we knew like Nifty 50 is going to face resistance at this level. And yesterday also we had created a flag on smaller time frames. We will again show you that flag, so you will completely understand how it found resistance here. Just a second. So you can see that a flag on smaller time frame was also constructed, but you can also see that there is a V-shaped recovery that is happening as of now. So if it does happen, so we can see Nifty 50 on a very like a high level in the days to come. But as of now, it is only a dream. So we just need to know if Nifty 50 gaps up tomorrow, there is a probability that it might try to come down very fast because of profit booking. Otherwise, if it holds this line and closes above this line tomorrow and day after tomorrow, we can say that there is a possibility that Nifty 50 has reversed its trend from bearish to bullish. So we will just have a look at the hourly chart also to ascertain some further information. So there is nothing significant. It operated within an entire region today. You can see each candle represents an R. So it maintained, it like consolidated in a particular area. The entire area is of 1724 minus 1, around 80 points. Nifty maintained like to operate within 80 points throughout the day. So these candles represent that Nifty maintained a position of 80 points throughout the day. Neither it went beyond 80 points nor it went below the 80 points. So it is a kind of consolidation. So it is possible that before making a further move, Nifty is trying to consolidate in this specific region. So this is an hourly chart. Nothing, because there's no point in showing you the weekly chart, because again the candle would be strong. We will just have a look at it. You can see the candle is strong. So it did try to enter this flag on the weekly charts but could not. So we will have to see if it enters the flag tomorrow or not. तो अब हम इसका निफ्टी 50 एनालिसिस जो हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं उसको हम हिंदी में डिस्कस करेंगे. तो ये कुछ लाइंस हम लोगों ने इंग्लिश के लिए ड्रॉ करी थी, हम उनको हटा रहे हैं अभी के लिए, हम दोबारा रीड्रॉ कर देंगे इनको. तो इससे पहले कि हम एनालिसिस के लिए आगे बढ़े, मैं ये लाइंस डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम आपको बिल्कुल वो दिखा सके जो कि एज ऑफ नाउ रेलिवेंट है. तो आप देख सकते हैं कि जैसा कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि निफ्टी 50 गैप अप करेगा. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि निफ्टी 50 को रेजिस्टेंस आएगी 17220 से लेके 17240-45 की रेंज में, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. निफ्टी ने ओपन ही इस लाइन की रेजिस्टेंस पे किया. तो जो उसकी रेजिस्टेंस है वहां पे ओपन किया 17200 249.40 पे उसने ओपन किया, और वहां से ओपन करके फिर ये वहीं पूरा दिन वहीं इसने बिताया. ऑलमोस्ट उसी रेंज में इसने रेंज फिक्स कर ली थी जो कि थी 17,161 से लेके 17,239 तक. इसने उसी रीजन में अपना पूरा दिन काट दिया. तो आप देख सकते हैं कि जैसा हमने कल सोचा था वैसा ही, मतलब जैसा कल हमने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वैसा ही हुआ. निफ्टी ने गैप अप किया, इस लाइन पे उसको रेजिस्टेंस मिली और वहीं पे ये एक छोटी सी कैंडल बना के बंद हो गया. हमने उस वीडियो में स्पेसिफिकली ये भी बोला है कि ऐसा हो सकता है कि कल निफ्टी यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनाए. इवन दो कैंडल छोटी सी बट एक काफी पावरफुल है क्योंकि बॉडी इसकी काफी सिग्निफिकेंट और विक्स बहुत छोटी छोटी सी है. तो ये एज ऑफ नाउ एक बुलिश कैंडल है. अब हमें कल देखने को क्या मिल सकता है. अगर निफ्टी 50 कल गैप अप खुलता है, मान लीजिए वो कोशिश करता है अंदर जाने की, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो अंदर जाए और फिर यहाँ से इसको प्रॉफिट बुकिंग मिले इस पर्टिकुलर लेवल से या किसी पर्टिकुलर लेवल से. यहाँ से भी इसको यहाँ से इसको प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है. 17,300 से पर तो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा. तो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 50 थोड़ा सा ऊपर खुले, ठीक है, मतलब इतना ऊपर ना खुल के थोड़ा सा ऊपर खुले और फिर नीचे आना
शुरू कर दे, जैसे इतना किया और थोड़ा सा ट्रैप किया वहां पे लोगों को और अपना नीचे आना शुरू कर दे। अगर तो निफ्टी 50 फिर इसको तोड़ देता है, इस वाली लाइन को तोड़ के नीचे ऑपरेट होना शुरू हो जाता है, तो हो सकता है कि वो जो यहाँ पे गैप बना है कल की और आज की कैंडल में, इसको फिल करने के लिए आए। तो ये गैप आपका 17,107 तक हो सकता है कि निफ्टी 50 फिर कल या परसों में नीचे गिरे, इस गैप को फिल करे और फिर अब वापस अपना अपसाइड मोमेंटम गेन करे। पर अगर किसी भी वजह से निफ्टी 50 कल इस लाइन को नहीं तोड़ता है और गैप अप को मेंटेन करता है, उस लाइन के ऊपर ऑपरेट करता रहता है और आने वाले दिनों में भी इस गैप के, इस लाइन के ऊपर ही ऑपरेट करता रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी 50 ने शायद शॉर्ट टर्म में अपना ट्रेंड रिवर्सल दे दिया है, बेरिश से वो बुलिश हो जाएगा। बट हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये लाइन जो है, इस लाइन को कल निफ्टी 50 होल्ड करे। तो सुबह ऐसा कुछ हो सकता है कि गैप अप हो, क्योंकि आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, तो कल गैप अप खुले और खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आए। प्रॉफिट बुकिंग जैसी आनी शुरू होगी, वो इस लाइन पे सपोर्ट पाने की कोशिश करेगी। अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग हुआ तो ठीक है, अगर स्ट्रांग नहीं हुआ तो फिर निफ्टी 50 इसके नीचे आएगी और ऐसा हो सकता है कि वो एक गैप्स फिल करने के लिए वापस या तो कल आए या फिर परसों आए और गैप फिल करने के बाद फिर ये वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा माना जाता है कि जो गैप बनता है उसको फिल करने के लिए स्टॉक या इंडेक्स एक बार वापस जरूर वहां पर जाता है। तो हमें कल देखना पड़ेगा ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर एक बार निफ्टी 50 फ्लैग में क्लोज करना शुरू कर देगा और कॉन्टिन्यूसली मतलब इसमें कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है कि निफ्टी 50 अपना अपसाइड दोबारा गेन करना शुरू कर दे। तो ये तो एनालिसिस है बेसिकली कि हमने कल आपको क्या बताया था और वैसा ही आज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। गैप अप खुला, छोटी सी कैंडल बनी है, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला और यहाँ से ही सुबह खुला और यहीं से वो वापस घूम गया। तो 17,220 से लेके 17,250 240 की रेंज हमने आपको बताई थी, वहीं वो सारा दिन कोशिश करता रहा कि मेंटेन कर सके और एंड में उसने क्लोजिंग भी उसके बीच में दी है, जो कि 17,233 रुपए 35 पैसा है। तो क्लोजिंग भी अच्छी है, हम ये नहीं कह सकते क्लोजिंग खराब है। कल से ऊपर क्लोज हुआ है, बट क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर क्लोज हो रहा है, तो हो सकता है कि हमें आने वाले दिनों में थोड़ी सी, आने वाले दिनों में मतलब कल या परसों में हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आए। और हो सकता है कि हमें आईटी के स्टॉक्स में ज्यादा नजर आए, क्योंकि जब मार्केट क्लोज हो रही थी तो रिलायंस को ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही थी और आईटी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। आप स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं, इन्फी को स्टडी कर सकते हैं, आप स्मॉल कैप्स को केपीआईटी को स्टडी कर सकते हैं, आप एचसीएल टेक को स्टडी कर सकते हैं। बट सारे स्टॉक काफी अच्छे क्लोज हैं, आईटी के भी सारे स्टॉक्स काफी अच्छे क्लोज हुए हैं। तो अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ऐसा हो सकता है कि कल आपको आईटी के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और रिलायंस कल मार्केट को होल्ड करे, क्योंकि एंड में रिलायंस ने ही आज मार्केट को होल्ड कराया है। और रिलायंस का स्टॉक भी हम आज शाम को डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्योंकि उसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो आने वाले टाइम में वो कहाँ जा सकता है हम उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये तो निफ्टी 50 का एनालिसिस हमने कर दिया है जो डेली कैंडल पे होता है। एक बार मैं आपको आर्ली कैंडल भी दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा आज पूरे दिन में क्या हुआ। तो ये आज की आर्ली कैंडल्स हैं, जो ये वाली कैंडल्स है, अगर आपको नजर आ रही है यहाँ पे, तो ये सारी की सारी जो कैंडल्स है ये आर्ली कैंडल्स है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 50 अभी कुछ दिन इसी रेंज में घूमता रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब वो इस रेंज का ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, तब आपको एक फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी आईटी में नजर आएगा। तो ये पूरी की पूरी कैंडल्स ये दिखा रही है कि निफ्टी 50 आज 80 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे करता रहा। तो आज कंसोलिडेशन, कल का दिन अपसाइड का था, आज कंसोलिडेशन हुई है। तो हमें कल वेट करना पड़ेगा कि कल कैसे परफॉर्म होता है, तभी हम कुछ जज कर पाएंगे कि अब निफ्टी 50 कहाँ जा सकता है। बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी 50 कल ऊपर ही खुले, क्योंकि आज की क्लोजिंग अच्छी हुई है और मार्केट्स जो इंटरनेशनल मार्केट्स है वो भी अभी पॉजिटिव ही दिख रही हैं। तो अगर 300 के ऊपर खुलती है और वहां होल्ड कर जाती है तो फिर हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आए और हमें कल और अपसाइड दिखे, पर वो भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो वो हमें कल ही पता चल पाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज या कमेंट्स हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उस पर जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज हमारे वीडियोस पे कोई भी ट्रेड पोजीशन ना बनाए, ना कोई पुट, ना कोई कॉल, या ना कोई फ्यूचर्स, ना कोई भी ट्रेड आप ना लें। ये वीडियोस सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और आपको ये समझाने के लिए कि किस तरह से एक्चुअली में लेवल्स काम करते हैं, अगर वो ब्रेक होते हैं तो उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, निफ्टी 50 में भी क्या सपोर्ट बन रहा है, क्या रेजिस्टेंस बन रहा है, हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो हो सकता है कल निफ्टी 50 को इस रेंज में सपोर्ट मिले कहीं पे 270 275 में, बट अगर वो उसको तोड़ के नीचे आता है और प्रॉफिट बुकिंग शार्प हुई तो हो सकता है कि एक गैप कल ही फिल हो जाए और फिर परसों से हम लोग और फर्दर अपसाइड
देखें अगर निफ्टी 50 को अपना ट्रेंड रिवर्सल करना है, अगर इसको तोड़ के नीचे आता है फिर ये लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देगी, प्रोवाइडेड ये कल इसको तोड़ के ऊपर जाए पहले। अभी तो ये नहीं बंद हो गया, रेजिस्टेंस पे ही टच करके नीचे आया है, तो हो सकता है कल भी ऐसा ही कुछ है कि ऊपर जाए फिर नीचे और फिर इसको सपोर्ट की तरह काम ना करके फिर नीचे आ जाए और फिर यहाँ पे इसको बार बार रेजिस्टेंस मिलती रहे। तो मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। सो दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।